And so today we are going to see about speed, average speed, velocity and average velocity. So let us start with speed and average speed. So let us see about speed. It is simply distance covered per unit. Okay, or we can write it is formula can be written as distance upon time. Distance is nothing but length, we know that, right? Let us see what will be its unit. Distance is nothing but length. The SI unit of length is, it is something like length, path length. Okay, distance covered is nothing but the path length. Path length divided by time. So length is having the SI unit of meter and time is having the SI unit of second. So the unit, or we can say SI unit of speed is meter per second. Okay, meter per second. And we know as speed is depending on distance, which is a scalar quantity, right? As speed is dependent on distance, which is a scalar quantity, speed is also a scalar quantity. Very simple. Speed is a scalar quantity. So these are the important things which we should know about the speed. Now let us see. Speed तो ठीक है, बहुत आसान है. अगर एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, दिस इज पॉइंट ए, यहाँ से यहाँ तक अगर मोशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक in a straight line, because in 9th class we are only dealing with the straight line motion. So we consider the motion has happened in the straight line, that is A to B. Okay, so we can say that 10 meters is covered in 5 seconds. So let us talk about the speed of the vehicle or the person which is moving from A point to B point. The path length over here is 10 meter. Alright. So speed we can write, speed in this case is equal to distance covered is 10 meter divided by time taken is 5 seconds. So we can simply see that it will be equal to what? 10 upon 5 is what? 2. Okay, 2 meter per second. Very simple. Yes, alright, so this one is very easy. Now let us talk about average speed. Okay, they both quantities are different and they can be utilized for different kind of motion. Okay, for example, this is the formula which we use generally for uniform motion. Okay, let us see about if object is moving non-uniformly, that means let us talk about some example over here. Okay, एक example देखते हैं, ये वो easily समझ में आएगा. Let's see. Here is A. A is a person who wants to go out with a friend B. Okay, the house of B is 10 meters apart from A. Okay, when A follows straight line, again one more friend is waiting at point C. Okay, at point C, again it is at the distance of 10 meter. Okay, and these three person want to go to point D. Okay, so let us consider now, from A point one person wants to go to B point, picks up the other person, they both go to the C point, picks up the third person. Now these three together go to the point D. Alright, so how they are moving now, they each are 10 meter apart from each other, right? We can see that हर एक के बीच में difference कितना है, 10 meters का है. But first वाला person जब second person के पास गया है, he has taken 2 second time, right? 2 second का time span लगा है. जब second और first person दोनों मिलके C person के पास गए हैं, they have taken 3 seconds of time. Okay, जब final destination पे they have reached, they have taken 5 seconds. Okay, तो अगर आप parts में यहाँ से यहाँ तक का speed find out करोगे, speed, you see that it is simply distance divided by time. So 10 upon 2, it will be 5 meter per second. If you calculate from here to this point, okay, speed, it will be 10 divided by 3, it comes to be 3.33 meter per second. Alright, if you calculate speed for
this, how much, 10/5. So speed will be equal to 2 मीटर पर सेकेंड. सिंपल, ठीक है, ये हो गया. बट अब टोटल अगर हम पूछेंगे, ए पर्सन जब घर से निकला था तो वो डी पॉइंट तक गया है, तो उसका स्पीड क्या है. ओके, बीच में ब्रेक लिया है, हर एक पॉइंट में अलग अलग टाइम इंटरवल है, देख रहे हैं आप. डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम इंटरवल अलग है. तो ये नॉन यूनिफॉर्म वाला केस हो गया, राइट. नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो ऐसे केसेस में हम क्या बता सकते हैं, अगर एक पर्सन घर से निकल के गया है तो उसका स्पीड क्या है उस पाथ में. Okay, so for such cases you can take the example of train. When train is moving from one station to other station, destination तक पहुंचने के लिए बहुत सारे stations आते हैं बीच में. बहुत सारे stations में क्या होता है, ब्रेक लेना पड़ता है, फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करने के लिए अगेन कुछ टाइम लगता है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए फिर से ब्रेक लेना पड़ता है स्टेशन पे, फिर कुछ टाइम लेता है. इस तरह से अगर आप देखेंगे, ऐसे मोशंस के लिए हम एक एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, मतलब पूरे जर्नी में ओवरऑल ट्रेन किस स्पीड से चला है, ठीक है, एवरेज क्या स्पीड थी. सो सच फॉर सच केसेस, फॉर सच नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी कैन यूज द टर्म एवरेज स्पीड. अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए 3 स्पीड की वैल्यू तो है हमारे पास, राइट. बट अगर हम कहें कि ये वाली स्पीड थी तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एकदम ही कम है, यहाँ पे देखिए और कम है ना. इफ वी से कि 3.33 था, ये भी गलत है. इफ वी से 2 मीटर पर सेकेंड था, वो भी गलत है. So average speed, we use average speed for such cases, okay, and this is equal to total distance covered divided by total time. So if we see over here in this case if we see total distance covered कितना है, 10 meters, 10 meters, 10 meters. We have to add it, right? So 10 meter plus 10 meter plus 10 meter divided by, now let us add the total time. The total time is what, 2 second plus 3 second plus 5 second. So we add 2 second plus 3 second plus 5 second. This comes to be what? This is 10, this is 30. 30 divided by 10. So we can see it is what, 3 meter per second, है ना. तो ये हो गया एवरेज स्पीड किसका, ये पर्सन जो यहाँ से वहां तक जा रहा है उसका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है. ऑलराइट, फाइन. आई होप द टर्म एवरेज स्पीड इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. देयर इज नो इश्यू विद इट. ओके, एवरेज स्पीड में किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए. स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर डिफरेंट थिंग्स. द यूनिट विल बी अगेन व्हाट, टोटल डिस्टेंस हो या डिस्टेंस हो, है तो लेंथ ही, तो लेंथ अपॉन टाइम ही है ये. ओके, तो लेंथ का यूनिट ऐसा यूनिट हो गया मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट हो गया second. So the unit will be meter per second only. And again, as speed is depending on distance, which is a scalar quantity, speed भी scalar quantity है, वैसे ही average speed भी क्या है, scalar quantity है. Fine, it is clear. Now let us see about the velocity. Okay, so let us see about velocity. Velocity is nothing but it is a vector quantity. It is the, okay, velocity is nothing but it is the total displacement. Okay, the formula is like displacement per unit time. Velocity can be written as displacement per unit time. Now what is going to be its unit? डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगेन ये लेंथ है. लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. ये मैंने बहुत पहले यूनिट समझाया था सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में. देयर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग. ओके, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, लेंथ ही है तो मीटर होगा. टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा, ठीक है. सो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी, और वी कैन राइट SI यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन राइट इट. एंड इट इज अ वेक्टर, मतलब इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एज velocity is depending on displacement, it is again a vector quantity. All right, so speed और velocity में difference है, ठीक है.
स्पीड के लिए डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, बट वेलोसिटी डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, सो लेट अस सी नाउ अबाउट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं अब क्या होता है ये। एवरेज वेलोसिटी, what it is going to be, again it is going to be for the नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमने एवरेज स्पीड लिखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सेम केस है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के लिए। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इट इज गोइंग टू बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऑल राइट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगेन द यूनिट विल बी, यूनिट क्या है, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर, सिंपल है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई विल राइट ओवर हियर वेक्टर, बहुत सारा लिखना पड़ता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड नाउ वी विल सी अबाउट, अगर ऐसा है कि ये जो मोशन हो रहा है ये यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होगा मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अलग होने वाला है, ठीक है। बट अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है मतलब इट्स समथिंग लाइक, अगर आपने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए वेलोसिटी के, लेट मी राइट समथिंग। अगर आपने वेलोसिटी लिखा, सबसे पहले पॉइंट पे आपने मेजर किया 2 सेकेंड के बाद, तो 2 मीटर पर सेकेंड आया अगर आपका वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका 4 मीटर पर सेकेंड आया है। नेक्स्ट आपका 6 मीटर पर सेकेंड आया वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका 8 मीटर पर सेकेंड आया है। ओके, इन सबके बीच में अगर गैप 2 सेकेंड्स का है तो टाइम इंटरवल सेम है। और ये देखिए, इफ यू सी दिस डिफरेंस, here it comes to, here it comes to again, here again it comes to, और सच मोशन जहाँ पे इसका रेट ऑफ चेंज जो है हर बार 2 के यूनिट से ये बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर 2 सेकेंड के बाद 2 नंबर से बढ़ रहा है वो, राइट, उसमें 2 ऐड होते जा रहा है। सो ये यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कभी हमने इसमें वेलोसिटी इसका 3 टाइम्स बढ़ गया, ऐसा नहीं है, हर बार 2 के मल्टीपल में इंक्रीज हो रहा है, दैट वी कैन सी। So when such motions are there, for such motions the average we can write, this is important, we should know this one। average velocity के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। average velocity के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वन इज दिस, ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट सेकेंड वन, इफ velocity is changing at uniform rate, then average velocity is, मीन बोला तो मीन हम सबको पता होना चाहिए क्या होता है मीन, हाउ टू फाइंड आउट मीन। ये मैथ्स में सीखा हुआ टर्मिनोलॉजी है कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैथ्स में आपने बहुत सारे नंबर्स का मीन निकाला होगा। इफ 10 नंबर्स आर गिवन तो उसका मीन क्या होता है, ओके, यू ऐड ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स दिए हैं उससे आप उसको डिवाइड कर देते हैं तो मीन आ जाता है। एज वी आर टेकिंग 2 वेलोसिटीज, यहाँ पे हम 2 वेलोसिटी ले रहे हैं, इनिशियल एंड फाइनल। तो टोटल कितने वेलोसिटीज लिए हमने कंसीडर किए, 2 वेलोसिटीज, एक इनिशियल वाला एक फाइनल वाला। तो ऑब्वियसली इसका मीन निकालने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस राइट एवरेज स्पीड फॉर्मूला फॉर दिस वन। ये बहुत सिंपल था, 2 एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वन वी हैव सीन, सेकेंड लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। फॉर सच केसेस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू initial velocity plus final velocity divided by 2। ऑलराइट, सिंपल है। तो अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका यूनिट। फर्स्ट वाले वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड था। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, ये क्या है, वेलोसिटी का टर्म है, ओके। ये वाला टर्म क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वेलोसिटी है, 2 तो कांस्टेंट है,
इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं यूनिट लिखने के लिए। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी नंबर हो पर है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही, प्लस ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो इसका यूनिट इंडिविजुअल क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट इंडिविजुअल क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन दोनों का कंबाइन यूनिट हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेम यूनिट है तो वो कॉमन आ सकता है। तो जो भी ऐड करने के बाद नंबर आएगा उसमें हम यूनिट कॉमन लगा देंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई अलग यूनिट नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि ये भी टर्म क्या है वेलोसिटी ही वो। ठीक है, किसी भी कंडीशन में वेलोसिटी का यूनिट वही रहने वाला है ना, एवरेज वेलोसिटी, तो इसका यूनिट यही होगा। ठीक है, सो वी शुड रिमेंबर दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ये याद रखना है हमें, ये कब यूज होगा, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से। ओके, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज। द फॉर्मूला इज लाइक दिस। ठीक है, हमने एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले अभी जस्ट पढ़े हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने ये पढ़ा है कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, देन एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज स्पीड में एक ही फॉर्मूला था, क्योंकि वो सिंपल केस है, पढ़ लिया हमने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर किया है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का स्कोप उतना ही है, उससे ज़्यादा हमें 9th में पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये कि हमने एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक सिंपल एवरेज वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करना है, इन दैट केस वी हैव वन फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ऑलराइट, एक के साथ कंडीशन ये है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यूनिट उसका होगा मीटर पर सेकेंड ही। क्वांटिटी कौन सी होगी, है वेक्टर ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी है। डिपेंडेंट ये किस पे है, किस पे डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, ओके, सो वी शुड रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट विल सी अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखेंगे अभी नेक्स्ट, उसके एक्सेलरेशन तक अभी देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो लेट अस सी अबाउट व्हाट इज एक्सेलरेशन। Acceleration I'll explain one more time, but let us see the definition. Okay, velocity per unit time. ठीक है, हमने एक सिंपल सी टर्म डिफाइन की थी, हमने एक बहुत ही आसान सी टर्म, we can say acceleration is nothing but change in velocity per unit time. अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, if u is initial velocity, v is final velocity, ठीक है, t टाइम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका यूनिट क्या होना है, इसके पहले हमने इसी टाइप का कुछ फॉर्मूला देखा, बट दैट वाज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और आई विल राइट ओवर हियर एवरेज वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी था। ठीक है, दिस इज वेरी डिफरेंट टर्म, दिस इज वेरी डिफरेंट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यूनिट देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज है। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का ही टर्म मिलेगा हमें। इट इज समथिंग लाइक 10 चॉकलेट में से 5 ले लिए तो क्या बचा, चॉकलेट ही बचेगा ना, कुछ और तो बचेगा नहीं, है ना, चॉक तो बचेंगे नहीं। चॉकलेट में से चॉकलेट माइनस किया तो चॉकलेट ही बचेगा, या तो 0 चॉकलेट बचेगा या तो कुछ नंबर्स बचेंगे चॉकलेट के। तो सेम थिंग ये है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी हम माइनस किया तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म डिवाइडेड बाय टाइम का टर्म मिलेगा। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या है, पर सेकेंड। दिस सेकेंड विल कम डाउन एंड द यूनिट बिकम्स, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, इट इज अ वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये कर रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके फाइन, दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन, कोई इसमें इशू होना नहीं चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, सो
For today this much is okay. Next we are going to see about the graphical representation और acceleration भी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, है ना, ताकि graphical representation हमें easily समझ में आ जाए. Okay, that's all for today. I hope this is very clear to everyone. कोई issue नहीं होगा इसमें. Okay, thank you so much for watching.